Détends-toi. Leçon 7. Range ta chambre. Arrange your room, kids. So चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्रेंच का ये लेसन. C'est la chambre d'Alex. So it's Alex's bedroom et il est paresseux. He is very lazy. Il ne range pas sa chambre. He does not arrange his room at all. La mère d'Alex s'inquiète beaucoup. So Alex's mother is very worried et elle demande toujours à Alex de nettoyer sa chambre. तो वो हमेशा एलेक्स को बोलती हैं कि भाई रूम साफ कर ले. हमारी मम्मी अभी ना. So let's look at a conversation जो उन दोनों के बीच हुई. मामा कह रही है कब फीचू क्या कर रहे हो? लेफ्ट तो अभी ए range ta chambre. उठो और अपना रूम समेटो. Elle est très sale. It's very dirty, Alex. बहुत गंदा कर रखा है तुमने कमरा. Mais maman, j'aime ma chambre comme ça. But mom, I like my room like this. Elle est très vivante. कितना lively लग रहा है. मुझे पसंद है मेरा रूम इस तरह. Ne t'inquiète pas, don't worry. Tu dois mettre tes affaires en ordre. तुम्हें अपना सामान ठीक से लगाने की जरूरत है. Mettre les livres sur la table. Put the books on the table. Ferme ton armoire et range tes vêtements. अपनी अलमारी समेटो, कपड़े ठीक से लगाओ. Ne joue pas aux jeux vidéo et finis tes devoirs. गेम खेलना बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो. Moms being moms, बड़े गुस्से में है वो. तो एलेक्स क्या पूछ रहा है? Est-ce que je peux ranger la chambre dans quelque temps? क्या मैं थोड़ी देर में रूम साफ कर लूं मम्मा? अभी नहीं. Non, finis ton travail. नहीं, अभी के अभी काम करो. Dépêche-toi, जल्दी. Range ton cartable aussi. अपना बैग भी लगाओ स्कूल का. Les crayons, stylos et cahiers sont sur le lit. सब कुछ पेंसिल, पेन, नोटबुक सब बेड पे ऐसे ही पड़ा है. फिर तू immédiatement अभी के अभी सारा काम करो. Oui maman, bien sûr. Attends 10 minutes. Ok maman, करता हूँ मैं. 10 मिनट तो दो. Très bien. Sois un garçon sage. Very good. बहुत अच्छे बच्चे हो तुम. Je fais un gâteau au chocolat pour toi. चलो चलो तुम ये करो और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा चॉकलेट केक बनाती हूँ. ओ मामा, tu es très gentille. Merci. ओ मामा, कितने अच्छे हो आप. Thank you. अभी करता हूँ काम. La mère d'Alex est très contente aujourd'hui. So अब ये सब होने के बाद मम्मा बहुत खुश है. Elle va préparer un gâteau au chocolat pour Alex. Now she's going to prepare an amazing chocolate cake for Alex. सीखे? Comment fait le gâteau? कैसे बना रही है वो केक? So, शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है हमारी रेसिपी. La recette de gâteau au chocolat. Gâteau que tout le monde aime. A cake that everyone loves. So let's first look at the ingredients. That's the ingredients for the person, 2 people. 2 cuillères à soupe de beurre, that means 2 tablespoons of butter. 2 carrés de chocolat, that means 2 bars of chocolate. 2 cuillères à soupe de lait. Cuillère à soupe, tablespoon. So 2 tablespoons of milk. 2 cuillères à soupe de cacao. So 2 tablespoons of cocoa powder. 3 cuillères à soupe de sucre. 3 tablespoons of sugar. 4 cuillères à soupe de farine. 4 tablespoons of maida. Flour. Enough. An egg. So these are the basic ingredients जो आपको उस chocolate cake के लिए चाहिए. Okay? What's the recipe? Comment préparer? How do you prepare the cake? So pour la préparation, dans une tasse, faites fondre le beurre, le chocolat et le lait. So in a bowl or something, put together butter, chocolate and milk. Ajoutez le cacao. So add cocoa powder, le sucre, sugar et la farine, flour. Puis and then सब कुछ mix करके l'œuf, then the egg. Et mélangez-les bien. Mélangez-les bien means mix everything well. Faites cuire pendant 15 minutes
Omicron. So let it cook in the microwave oven for 15 minutes. E laissez le mélange refroidir pour quelques minutes et déguster. So उसके बाद केक को छोड़ दीजिए ठंडा होने एंड थोड़ी देर के लिए एंड देन देगुस्ते एंजॉय द केक. अमेजिंग. कितनी सही रेसिपी है ना और कितनी इजी. मैंने ट्राई की भी है, सो इट्स अ हिट, डोंट वरी. ओके चलिए. Maintenant, on va voir la grammaire. So let's now move to the grammar part of this lesson. Qu'est-ce qu'on va faire? क्या करने वाले हैं हम? L'impératif. So imperatives क्यों use होते हैं? Imperatives use होते हैं इंग्लिश में भी to give orders, commands, advices and urgent messages. किसी को मुझे ऑर्डर करना हो, किसी तरह का कमांड या एडवाइस देनी हो या कोई भी अर्जेंट मैसेज कन्वे करना हो, मैं इम्पेरेटिव फॉर्म यूज करती हूँ. इम्पेरेटिव्स के सिर्फ 3 फॉर्म्स होते हैं, त्यो, नो एंड वो ऑफ द प्रेजेंट टेंस. सो जिनको नहीं पता इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं, इम्पेरेटिव्स आर स्टेटमेंट्स लाइक शट द डोर, लॉक द विंडो, ब्रिंग योर नोटबुक. सो जहां पर हम बिना सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें सामने वाले से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और उसे डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं कोई चीज करने का. ओके सो इसीलिए फ्रेंच में भी जब आप इम्पेरेटिव्स यूज करेंगे सिर्फ 3 फॉर्म्स में यूज करेंगे, त्यो, नु एंड वो. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है इम्पेरेटिव टेंस और प्रेजेंट टेंस में? वो ये कि प्रेजेंट में आप सब्जेक्ट के साथ कोई बात बोलते हो, जैसे त्यू पार्ल बोको, यू स्पीक अ लॉट. इम्पेरेटिव में यू विल से पार्ल बोको, बहुत बोलते हो. सो विदाउट द सब्जेक्ट प्रोनाउन. आफ्टर अ सेंटेंस इन द इम्पेरेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप. मतलब एक फुल स्टॉप की जगह एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है. तो अगर ये 3 बेसिक गाइडलाइंस आप याद रखते हैं तो इम्पेरेटिव्स में गलती के चांसेस 0. चल सीखते हैं कैसे बनाए जाते हैं इम्पेरेटिव्स इन फ्रेंच. पहले शुरू करेंगे सिंपल, avec les verbes réguliers with the regular verbs. हाँ जी. सो क्या होगा हमारा स्टेप 1? राइट द प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब विथ त्यू, नु एंड वो. अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक ER एंडिंग वर्ब ए में, एक IR एंडिंग वर्ब रोजीर और एक RE एंडिंग वर्ब वॉन्द्रे. सो स्टेप 1 क्या होगा इनका इम्पेरेटिव बनाने का कि हम इनके प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन लिखेंगे विथ त्यो, नो एंड वो. ये रे स्टेप 2. स्टेप 2 में वी रिमूव द सब्जेक्ट्स. अभी हमने क्या सीखा था कि इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं जहां सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होते. यू रिमूव द सब्जेक्ट एंड ऐड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप ऐड कर दोगे. तो ये जो मेरी कॉन्जुगेशन हुई थी, मैं इनमें अब क्या करूंगी, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हटा के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगी. देख सकते हैं आप, मैंने वही किया है. अब क्या 90% काम हमारा हो गया. मैम आपने यही तो बोला था कि प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन में सब्जेक्ट हटा दो, बन जाएगा इम्पेरेटिव. बच्चों मजा नहीं आता ग्रामर में अगर कोई छोटा मोटा रूल ना, तो एक एक्स्ट्रा रूल सीख ले. स्टेप 3 हमारा क्या होगा कि जितनी भी ER एंडिंग वर्ब्स का आप इम्पेरेटिव बनाओगे उसमें त्यो फॉर्म कॉन्जुगेशन में से लास्ट का S हटा दोगे. तो यानी IR एंडिंग वर्ब्स और RE एंडिंग वर्ब्स, उनमें तो 2 स्टेप में ही इम्पेरेटिव बन गया था. बट ये तीसरा स्टेप हमें स्पेशली किसके लिए करना पड़ रहा है, एम के लिए. द कॉन्जुगेशन ऑफ एम विथ त्यो फॉर्म. तो स्टेप क्या कहता है कि त्यो फॉर्म ER एंडिंग वर्ब से S हटा दिया भाई. तो ये लीजिए, ये रहे हमारे इम्पेरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल 3 वर्ब्स एमे, रोशीर एंड वॉन्द्र. ओके चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Tu regardes le match. अब बोला गया है कि इस सेंटेंस को इम्पेरेटिव में चेंज करो. सो स्टेप 1 हुआ हुआ है प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन त्यो के साथ. स्टेप 2
सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, लगा दिया। लेकिन regard दे बच्चों एक ER एंडिंग वर्ब है, तो ER एंडिंग वर्ब में फाइनल S भी हटेगा जो ट्यू फॉर्म के साथ है। तो यानी मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? Regarde le match। इसी तरह nous répondons aux questions, स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 2 के चलते नो हटा दीजिए और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब रिपोंड्रो क्योंकि आरई वर्ब है, इसमें स्टेप 3 लगना ही नहीं, तो ये रहा मेरा आंसर, répondons aux questions। एंड लास्ट, vous réussissez dans les examens, अगेन स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 2 में वो हटा के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एंड क्योंकि ये रेयूसीर एक आयर एंडिंग वर्ब है, इसमें 2 ही स्टेप चाहिए, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ऑफ दिस। तो देखा कितना आसान होता है इंपेरेटिव्स करना। तो चलिए इसी बात पे ऐसे ही वो ट्राई योरसेल्फ। अब मैं दूंगी आपको 3 सेंटेंसेस जिनका इंपेरेटिव फॉर्म आप मुझे खुद से लिख के बताइए। पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपने आंसर्स को फिर मैच कर लीजिएगा इस स्लाइड के साथ। तो ये तो थी सेंटेंस फॉर्म, वर्ब्स भी दो 3। सो ये देखिए यहाँ 3 वर्ब्स मैंने दिए हैं आपको, jouer, finir और attendre। जो 3 स्टेप्स अभी हमने सीखे उनको यूज करके इन तीनों वर्ब्स का इंपेरेटिव फॉर्म एक बार खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। एंड जैसे ही आप लिख लें यहां से अपने आंसर्स को मैच। तो देखा कितना सिंपल था इंपेरेटिव फॉर्म बनाना। चलिए इसी बात पे अब हम आगे बढ़ते हैं टू द वर्ब व्हिच आर इररेगुलर इन द इंपेरेटिव फॉर्म। तो टोटल 4 वर्ब्स हैं बच्चों जिनके इररेगुलर इंपेरेटिव्स होते हैं। सो वो कौन सी है? एत्र, avoir, savoir एंड vouloir। तो इन 4 वर्ब्स का आपको इंपेरेटिव फॉर्म याद करना पड़ता है। ओके चलो देखते हैं ना एक एक करके। पहले इनके प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन याद करते हैं। एत्र की प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन क्या होती है? tu, nous, vous में tu es, nous sommes, vous êtes। ऐसे ही avoir के tu as, nous avons, vous avez। savoir, tu sais, nous savons, vous savez। and vouloir, tu veux, nous voulons, vous voulez। तो चलिए पहले देखते हैं इनकी इंपेरेटिव फॉर्म होती कैसे है और उसके बाद समझेंगे कि उनकी जरूरत ही क्या थी। हम यही क्यों नहीं यूज कर लेते प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशंस बाकी वर्ब्स की तरह। तो ये देखिए एत्र और avoir की इंपेरेटिव कॉन्जुगेशन होती है एत्र की सुआ, सोयो, सोइए। avoir की आई, आइयो, आइए। अब इनकी नीड क्या थी ना? अब देखो ये सेंटेंस है you a calm in the present। अगर मैं इसको रेगुलर तरीके से लिख दूं तो इसका इंपेरेटिव क्या बनेगा? ए calm। ये अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं ना, इसीलिए हमने इसका एक यूनिक इंपेरेटिव फॉर्म क्रिएट किया, सुआ calm। सुआ calm मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि एत्र का भी आपको कॉन्जुगेशन एकदम से तो याद होगा नहीं ना। ठीक है, इसी तरह nous avons courage का अगर रेगुलर इंपेरेटिव बनता तो क्या बनता? avons courage, which is wrong। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? avons का क्या था फॉर्म? ayons in imperative, so it becomes ayons courage, have courage, don't worry। इसी तरह savoir, vouloir देखते हैं बच्चों। savoir की इंपेरेटिव क्या है? sache, sachant, sachez। एंड vouloir की वही, voyons, voyez। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी ट्राई करते हैं इनको भी। वो सावे लाद्रेस, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अगर मुझे रेगुलर इंपेरेटिव में लिखना पड़ जाता तो क्या होता? सावे लाद्रेस, जो कि गलत होता। क्यों? क्योंकि हमें सावुआर का इंपेरेटिव जो इररेगुलर है उसे याद रखना है, जो क्या होता है? साशे। वो के साथ साशे, साशे लाद्रेस। ओके एंड लास्ट वुलवर का एग्जांपल, tu veux une bombe?
डू यू वांट अ मैंगो? वाई युन मॉन्ग तो नहीं चलेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा? वई युन मॉन्ग, वई युन मॉन्ग वांट अ मैंगो। ओके, सो बच्चों ये 4 हैं इर्रेगुलर इंपेरेटिव्स जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब कुछ बुक्स में ना हमारी प्यारी आले वर्ब को भी एक्सेप्शन दिखा देते हैं या इर्रेगुलर दिखा देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आले भी तो एक ईआर एंडिंग वर्ब ही है, तो उसमें हम वही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पहले सीखे। स्टेप 1 क्या था? प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन लिखो, लिख दी। स्टेप 2 क्या था? सब्जेक्ट्स हटा के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, लगा दिया। और स्टेप 3, अगर किसी वर्ब के साथ आप डील कर रहे हो जो ईआर एंडिंग है, उसके ट्यू फॉर्म में से एस हटा दो, वो भी हटा दिया। तो इसका मतलब आले वर्ब का इंपेरेटिव फॉर्म कैसा होगा बच्चों? कुछ ऐसा, वाह, आलो, आले। ठीक है, तो आले वर्ब याद रखना वो इर्रेगुलर नहीं है, उसमें वैसे ही रूल फॉलो होता है जैसे बाकी ईआर वर्ब्स के साथ आप फॉलो करते हैं। चलिए, इसी के साथ एक प्यारी सी एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। यहाँ पर अब मैंने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स जो इंपेरेटिव में हैं उनके कुछ प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस दिए, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। चियो regarde le film, स्टेप 1 हुआ है। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हटाया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। एंड स्टेप 3 कब फॉलो होगा? जब आप एक ईआर एंडिंग वर्ब के साथ डील कर रहे हो। ईआर एंडिंग वर्ब के ट्यू फॉर्म में से एस हटेगा एंड तभी मेरा आंसर क्या बना? regarde le film, वॉच द फिल्म। तो इसी तरह ये बाकी के 6 सेंटेंसेस ट्राई करिए। याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में एत्र, आबुआर, साबुआर या बुलुआर की कॉन्जुगेशन है तो उस केस में आपको उनका इर्रेगुलर इंपेरेटिव फॉर्म याद रखकर वो लिखना है। ठीक है, तो करिए वीडियो को पॉज, तभी तो कर पाओगे। हाँ जी, यहां से फिर मैच कर लो अपने आंसर्स को जल्दी से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बेसिक इंपेरेटिव का यहां तक समझ आ गया। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड कुछ नेगेटिव इंपेरेटिव्स पे अपना हाथ चलाते हैं। चलिए, नेगेटिव इंपेरेटिव्स इतने भी कुछ डिफिकल्ट नहीं। सो नेगेटिव इंपेरेटिव्स करने के लिए स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 भी सेम। एक एडिशनल स्टेप जो आएगा वो क्या होगा कि यू पुट न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब, जैसे आप नॉर्मल नेगेशन में करते हो, वर्ब से पहले ना और वर्ब के बाद पा। बट हाँ, ये करते वक्त अगर ईआर एंडिंग वर्ब हो तो ट्यू फॉर्म से एस हटाना मत भूलना। तो 3 वर्ब्स का दिखाऊं नेगेटिव इंपेरेटिव कैसा होगा, ये देखिए। इस बार मैंने वर्ब्स ली है पाखले, रयूसीर एंड वॉन्त्र। तो देखिए सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए मैंने उनका नेगेटिव इंपेरेटिव बना दिया, है ना आसान। चलिए इसी बात पे try yourself these 3 verbs, ne pas jouer, ne pas finir and ne pas attendre। इनका नेगेटिव इंपेरेटिव खुद लिखिएगा बच्चों, एंड जब लिख ले यहां से टैली कर लेना कि सही लिखा है या नहीं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बनाने के लिए इस सेंटेंस वाली एक्सरसाइज को भी ट्राई कर लो। आप थोड़े नेगेटिव सेंटेंसेस देती हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से लगने चाहिए बच्चों, तभी मैं कहूंगी कि आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए और आपको खुद को भी भरोसा होगा अपने ऊपर कि अब आने दो कोई भी इंपेरेटिव का क्वेश्चन हम लोग गलती नहीं करें। ठीक है, अब इससे पहले मैं ये टॉपिक खत्म करूं, भूलना मत कि प्रोनोमिनल वर्ब्स का इंपेरेटिव भी सीखना है अभी हमें। ठीक है, तो चलिए रेडी हो ना, शुरू करते हैं। ले वर्ब प्रोनोमिनो। प्रोनोमिनल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो उन एक्शंस को डिपिक्ट करती हैं जो हम खुद से खुद के लिए करते हैं। जो इंपेरेटिव होता है ना बच्चों प्रोनोमिनल वर्ब्स का, वो एफर्मेटिव फॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से बनता है
और नेगेटिव फॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे एफर्मेटिव फॉर्म के साथ। सो एफर्मेटिव इंपेरेटिव बनाने का स्टेप 1 क्या होगा? वही जो नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स में था कि वी विल राइट द प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब विथ थ्यू, नु एंड वू। तो यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है हमारी वर्ब स रपोसे। तो आप स रपोसे का प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन यहां लिखेंगे कुछ इस तरह, थ्यू द रपोस, नु रपोसो, वो रपोसे। स्टेप 2 क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट्स हटा दीजिए। सब्जेक्ट्स हटा के ये वर्ब कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, द रपोस, नु रपोसो, वो रपोसे। याद रखना सिर्फ सब्जेक्ट्स हटाने हैं, प्रोनाउंस नहीं। ओके, आगे बढ़े। स्टेप 3, invert the places of the verb and the pronoun and then add an exclamation mark। इसका मतलब बच्चों त और रिपोज की पोजीशन इन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे ही नु और रिपोजों की और वो और रपोजे की, और इन्वर्ट करके फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। पहले की तरह नहीं कि बस सब्जेक्ट प्रोनाउन हटाते ही एक्सक्लेमेशन आ गया। तो ये आपके वर्ब्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, रपोज त, रपोजो नु, रपोजे वो। तो मैम बन गया इंपेरेटिव। एक स्टेप और पक्का, ठीक है। स्टेप भी नहीं, एक एडिशनल नोट ही समझ लो उसका। त चेंजेस टू तुआ ऑन इन्वर्जन। जब भी आप इन्वर्ट करके लिखोगे वर्ब और प्रोनाउन को, तो अगर आपके पास प्रोनाउन त है दैट विल चेंज इनटू तुआ। नोट नंबर 2, क्योंकि ज्यादातर प्रोनोमिनल वर्ब्स जिनके साथ हम डील करेंगे वो सब ईआर एंडिंग होंगी, तो वही रूल, ईआर एंडिंग वर्ब के इंपेरेटिव में त्यू फॉर्म में से एस आपको हटा देना है। तो ये देखिए कैसा बना हमारा इंपेरेटिव, रपोज तुआ, रपोजो नु एंड रपोजे वो। याद है ना जब अभी पिछली ही स्लाइड पे लिखा था इन्वर्ट करके, तो क्या लिखा था, रपोज त, लेकिन इन दोनों नोट्स को फॉलो करके त बन गया तुआ एंड यहां से ये एस हट गया, जिसकी वजह से इंपेरेटिव फॉर्म कुछ इस तरह का बन गया, रपोज तुआ, रपोजो नु, रपोजे वो। ठीक है, शुरुआत में ओवरवेलमिंग लगता है बट विद प्रैक्टिस आप प्रो बन जाते हो ये करने में, ठीक है। चलिए एक बार इकट्ठे देख लें सारे स्टेप्स। प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हटाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे वर्ब और प्रोनाउन की प्लेस को, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करेंगे। इन्वर्जन के बाद त को तुआ बनाएंगे एंड त्यू फॉर्म में से एंड का एस हटाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी कॉन्जुगेशन होगी प्रेजेंट से इंपेरेटिव। ठीक है बच्चों, डरना नहीं है, इन सारे स्टेप्स को प्रैक्टिस करना है। ओके, पहले ही गिव अप मत कर देना कि मैम ये बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ, आपके लिए चीजें आसान करने के। इन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करके 2 या 3 वर्ब्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी लेती हूँ आप कभी गलती नहीं करोगे। ओके, चलिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। 2 वर्ब्स अपने आप ट्राई करो उन्हीं 4 स्टेप्स को यूज करके जो अभी हमने सीखे। ठीक है, वही 3 स्टेप्स और 2 नोट्स, उनको यूज करके साबिये और स लेवे वर्ब का इंपेरेटिव अपने आप लिखने का ट्राई करो। चलिए कुछ इस तरह का बनेगा उनका इंपेरेटिव कॉन्जुगेशन। यार सही मायने में बोलूं तो एफर्मेटिव इंपेरेटिव कॉन्जुगेशन। ओके बच्चों, तो अब फटाफट सीख लेते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव प्रोनोमिनल वर्ब्स थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें कोई इन्वर्जन नहीं है।
ठीक है, खैर स्टेप 1 प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन लिखेंगे वर्ब की कुछ इस तरह। स्टेप 2 सब्जेक्ट्स हटाएंगे जैसे पहले हटा रहे थे। एंड स्टेप 3 न बिफोर द प्रोनाउन एंड पा आफ्टर द वर्ब ऐड करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यानी अभी जो मेरी वर्ब कुछ इस तरह की दिख रही थी, त रिपोज, नु रिपोजो, भू रिपोजे, प्रोनाउन से पहले न और रिपोजे वर्ब के बाद पा, तो कुछ इस तरह की दिखेगी मेरी वर्ब इन नेगेटिव इंपेरेटिव ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब। ओके, बट इसमें भी एक नोट, और वो नोट क्या है कि अगर जिस प्रोनोमिनल वर्ब को आप कॉन्जुगेट कर रहे हो वो er एंडिंग है तो उसके ट्यूब फॉर्म में से s हटा देना। तो ये बन जाएंगे हमारे फाइनल इंपेरेटिव कॉन्जुगेशंस ऑफ स रिपोजे इन नेगेटिव। न त रिपोज पा, न नु रिपोजो पा एंड न वो रिपोजे पा। एक साथ देख लें सारे स्टेप्स। पहले प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट प्रोनाउन हटाए, प्रोनाउन से पहले न और वर्ब के बाद पा लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एंड फाइनली अगर er एंडिंग वर्ब है तो उसमें से लास्ट का s हमने हटा दिया। तो देखा, एफर्मेटिव इंपेरेटिव ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स में एक वो इन्वर्जन वाले पार्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट नेगेटिव इंपेरेटिव में तो कोई स्कोप नहीं। तो चलिए खुद से ट्राई करिए ये दो वर्ब्स जिनका अभी एफर्मेटिव आपने इंपेरेटिव लिखा था, उन्हीं का नेगेटिव इंपेरेटिव खुद से लिखने का ट्राई करो, एंड होने के बाद यहां से अपने आंसर को टैली कर लो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चों कि आप इस पॉइंट तक पहुंच गए बिना गिव अप करे। तो चलिए एक फाइनल एक्सरसाइज, 5 सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट टेंस जिनको आप चेंज करेंगे इन द एफर्मेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव। ओके, ध्यान रखना जिस सेंटेंस में नपा ऑलरेडी है वहां नेगेटिव इंपेरेटिव लगेगा, और जहां नपा नहीं है वहां इन्वर्ट करके आपको वर्ब और प्रोनाउन लिखना होगा। कर लो वीडियो को पॉज, ट्राई कर लो एक्सरसाइज, एंड जब हो जाए यहां से अपना फाइनल सॉल्यूशन मैच कर लो। तो इसी के साथ हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी हुआ कंप्लीट एंड ये लेसन भी हुआ फिनिश। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। और